Done. Okay, so we are discussing the topper notebooks, and in that we have started with the Yaksh Chaudhary's notebook. So the first question is sociology and the common sense converge at the some points but diverge at the more often points. So you have to evaluate the statement. Basically, the question is asking the comparison between how both are similar at the same time how both are different from each other. Okay, so how you would be approaching this, Persh? Better like start with the definition of the sociology, and then we can mention about the common sense. And because the question is saying first of all that it converge at the same time, to so it would be good कि अगर आप पहले similar वाले points लिखें and then difference लिखा जा सकता हाँ, मतलब सिमिलर पहले सही लगता है, फिर लास्ट में डिफरेंस देके फिर मतलब कंक्लूजन में दोनों को बैलेंस कर दो. करेक्ट ऑल्सो इसमें रेडक्लिफ ब्राउन का भी मेंशन किया जा सकता है एंथनी गिडेंस एंड ऑल्सो एथनो मेथोडोलॉजी और फिनोमिनोलॉजी वाले जो वो थे क्या बोलते कॉन्सेप्ट थे हार ठीक है तो गारफिंकल. एल्फ्रेड स्कल्स का जो फिनोमिनोलॉजी था कि हाउ फिनोमिना चेंजेस एंड लाइक देयर इज अ नीड ऑफ द नॉन पॉजिटिविज्म और लाइक नो इंटरेक्शन वाला जो था सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म का मीड का तो many a times common sense acts as a hypothesis or like no baseline for the sociology or like to carry upon the research, right? हाँ, और एक वो वाला डायग्राम भी डाल सकते हैं जो नितिन सिंह सांगवान वाला, कि मतलब रिवर्स रिलेशन दिखा सकते हैं कि सोशियोलॉजी कॉमन सेंस में कैसे कंट्रीब्यूट कर रहा है और कॉमन सेंस सोशियोलॉजी. करेक्ट वो डायग्राम इसमें ऐड किया जा सकता है राइट राइट ओके एक बार आंसर को भी गो थ्रू कर लेते हैं ना लेट अस चेक कि क्या लूप होल्स एंड क्या आंसर के एडवांटेजेस है जो ही हैव मेंशन introduction is fine is the remark given by the institution so yeah that is correct क्योंकि starting तो ऐसे होगी sociology and common sense का periphery में you can just define both the terms right Sociology is the study of social structure, institutions, and pattern of interrelationships, while common sense is the knowledge that a layperson has about day-to-day life. फिर divergence लिखा है इन्होंने. तो sociology और common sense में sociology it is based on evidence. Example suicide study by Durkheim. Common sense में not based on evidence can be stereotypical at times. Example women can't work outside is stereotypical belief. फिर है cause effect relationship can be established. Experimental methods can be used. Not provable. Theories and generalizations can be built. No theory making possible. It is reflexive. Example, many sociologists reflects on suicide study, Atkinson. Not reflexive, but it is individualistic many times. It is change-oriented, it is status quoist. However, there are many convergences also. ये डायग्राम दिखा दिया इन्होंने कि सोशियोलॉजी वो कॉमन सेंस है, इट चैलेंजेस कंक्लूजन्स एंड प्रोवाइड्स रॉ मटेरियल्स, और सोशियोलॉजी है वो एनरिचेस वोकैबुलरी एंड करेक्ट स्टीरियोटाइप्स. इन्होंने यहाँ लिख भी रखा है कि आपको सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म और एथनोमेथोडोलॉजीज को मेंशन करना था. एग्जैक्टली एंड ऑल्सो वो जो गैटरी ब्राउन था या स्कल्स था उसका इन्होंने मेंशन नहीं किया सो दैट इज ऑल्सो लैकिंग हियर तो उसको तो कन्वर्जेंस में मेंशन करना है क्योंकि उन दोनों ने ये कहा था ना कि सोशियोलॉजी कैन एक्ट एज अ बेस एंड सॉरी कॉमन सेंस एक्ट एज अ बेस फॉर द सोशियोलॉजी सो सोशियोलॉजी जो है वो कॉमन सेंस को ही थोड़ा सा ना अपग्रेड करके इट हैज बीन मोल्डेड बाय द नेम ऑफ द वर्ड सोशियोलॉजी so लेकिन ना convergence के लिए diagram would not only suffice at least we have to mention two lines because डायग्राम से सब कुछ क्लियरली नहीं होता है तो एटलीस्ट एक दो सेंटेंस में ना लिखा जा सकता है ओके अभी कंक्लूजन भी आ गया अकॉर्डिंग टू एंथनी गिडेंस
sometimes sociological knowledge itself become part of the common sense. Okay, same I was saying, no, Radcliffe Brown और वो जो सब थे. Hence, both common sense and sociology have convergence as well as divergence. Okay. ठीक है, डाइवर्जेंस को तो ही हैव लाइक जस्टिस, बट इन केस ऑफ द कन्वर्जेंस थोड़ा सा जस्टिस नहीं हुआ है. बट ठीक है, कॉमन सेंस पे जो इन्होंने लास्ट का कंक्लूजन ऐड किया दैट इज वेल एंड गुड. एंड ये जो लास्ट में रिमार्क्स डाले हुए हैं इनको भी मेंशन करना इम्पोर्टेंट था. मीड का सिंबॉलिक वाला, एथनोमेथोडोलॉजी एंड फिनोमिनोलॉजी. ओके ओके, स्पर्श नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. नेक्स्ट चलते हैं. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन द पॉजिटिविस्ट एंड इंटरप्रिटेटिव अप्रोचेस टू द साइंटिफिक मेथड इन सोशियोलॉजी. ओके हाँ, तो इसमें वही पॉजिटिविस्ट है, तो पहले जितने भी पॉजिटिविस्ट है, डर्कहाइम हो गया, ठीक है, कार्ल मार्क्स हो गया, और हर्बर्ट स्पेंसर है, ऑगस्ट कॉम्टे है, तो इनका मेंशन हो जाएगा. उसके बाद में इंटरप्रिटेटिव अप्रोच, इंटरप्रिटेटिव में यू कैन मेंशन वेबर. वेबर का जो कंपैरेटिव एनालिसिस और वर्स्टिहन था दैट कैन बी मेंशन्ड. एंड उसके बाद में जो मीट थे, तो मीट का सिंबॉलिक भी आ जाएगा इसमें. एंड ऑल्सो लाइक जो इंटरप्रिटेटिव वाले थे वो थोड़े से नॉन पॉजिटिविस्ट व्यू वाले थे कि द थिंग्स कैन बी सब्जेक्टिवली डिफाइंड एंड लाइक नो बायस वुड बी देयर. बट ऑन द कॉन्ट्रेरी पॉजिटिविस्ट का फंक्शन जो था वो यही था कि कोई भी चीज होती है वो फंक्शनलिस्ट होती है सबसे पहले, then that can be objectively defined. There is no subject involved, and after that there would be empirical observation, and like no, the observations would be carried on the scientific ways and the tools and all those methodologies which would be used here. ओके एंड फिर उसके बाद में पॉजिटिविस्ट में दो तीन, अब जैसे दरखाइम है तो दरखाइम का रिलीजन वाला भी मेंशन किया जा सकता है. सुसाइड का डेटा कैन बी मेंशन हियर. कार्ल मार्क्स वाला आ जाएगा. फिर इंटरप्रिटेटिव में वही वेबर का जो वस्त है ना उसको डिफाइन किया जाएगा कि कैसे यू जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड फ्रॉम देयर ऑन व्यूज एंड लाइक यू पुट योरसेल्फ इनटू द शू ऑफ अदर्स. एंड जो सब्जेक्टिव एनालिसिस फिर उसके बाद में किया जाता है. ओके, लेट अस सी. बाकी कुछ है तो प्लीज ऐड. मैं इसमें ये पूछ रहा था, जैसे इन्होंने ये किया है ना, ये डिफरेंस ऐसे दिखा दिया, हम थोड़े पैराग्राफ टाइप में दिखा सकते हैं कैसे, या ऐसे ही हाँ, मतलब ना करना है? दोनों दोनों अलाउड है. इससे बस थोड़ा क्या हो जाता है स्पर्श, दैट बिकम्स मच इजी. मतलब ये टेबुलर फॉर्म का ना एक जो सबसे अच्छा एडवांटेज वो ये है कि इसमें ना आपके पास पॉइंट की कभी कमी नहीं पड़ती है. जब आप टेबुलर फॉर्म बनाते चलते हो ना, तो अगर आप उसमें आगे बेसिक्स भी डाल दो ना, बेसिस ऑफ द डिफरेंस, तो बहुत इजी हो जाता है. लेकिन जब आप बुलेट में लिखते हो ना तो थोड़ा सा ये रहता है कि आप थर्ड फोर्थ पॉइंट पे आने के बाद यू विल बी थिंकिंग कि अब क्या लिखूं मैं, क्या लिखूं. मतलब ना टैबलर फॉर्म से थोड़ा इजी होता चलता है. वो जैसे जैसे आप वहां पे नोट करते हो वैसे ही आपके दिमाग में भी उसका ना ग्राफिक बनता है. बुलेट में थोड़ा सा बस वो इश्यू है. बाकी बुलेट से क्लैरिटी भी अच्छी होती है, लेकिन सेम द टाइम टैबलर फॉर्म आपको ज्यादा क्लैरिटी देता है. इजी में ना जल्दी से आपको आंसर देखना हो ना, तो यू विल फील कि आपको टैबलर फॉर्म से इजीली समझा भी सकते हो, इजीली आप समझ भी सकते हो. बुलेट थोड़ा सा वो एक ना बहुत लंबा चौड़ा काम हो जाता है कि आपको लिखना है, फिर बहुत लिखना भी पड़ता है. टैबलर फॉर्म में इतना लिखना नहीं पड़ता. आप खुद देखना टैबलर फॉर्म, अगर आप पहले वाला आंसर देखा था ना अपन ने, कॉमन सेंस वाला, हाँ. यू योर कैन सी कि उसमें कितना कम लिखना पड़ता है. कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे ऑब्जेक्टिव लिख दो, वहां पे सब्जेक्टिव लिख दो. यहाँ पे लिख दो कि सिंपल व्यूज पे होता है, उधर लिख दो कि वो मतलब साइंटिफिक व्यूज पे बेस्ड होता है. यहाँ पे लिख दो वो क्वालिटेटिव होता है वहां पे नॉन क्वालिटेटिव, ऐसे करके वो थोड़ा सा इजी रहता है बस टैबलर वाला. बाकी बुलेट वाला इज नॉट रॉन्ग, यू कैन डू बोथ. डिपेंड्स कि आपको कौन सा सही ओके. लगता है.
ओके मैम, तो ये देख लेते हैं. पॉजिटिविस्ट एंड interpretativist are two sets of methodologies in sociology which, while being different in approaches, try to explain the social reality. Difference between the two: positivist, it sees social world as observable directly and objectively. Social world can be observed directly because of meanings and motives of individuals. The attributes of social worlds can be quantified. Meanings and motives are dynamic and cannot be quantified. तो मैक्स वेबर ने बोला था. Methods similarly to natural science can be employed. Scientific methods similar to natural science can't be used. For example, इन्होंने वही दिया है. Durkheim used quantitative methods in his study of suicide. हाँ, ये वर्ड से हन वाला अपोजिट में मेंशन नहीं किया इन्होंने इसमें. यहाँ भी एग्जांपल डाल सकते थे. Experiments can be done on the quantitative data. Experiments similar to natural sciences are not possible. Causal explanation can be attained. For example, Durkheim gave reasons for suicide in various societies, while symbolic interactionist and Weber advocates the possibility of causal explanation, but phenomenology completely denies it. For example, Arnold Garfinkel advocates the motive of sociologists should be to explain phenomena and not causal explanation. General and universal law is the aim. General laws are not possible. यहाँ पे अब दो पॉइंट और डिस्कस किए जा रहे हैं. द फर्स्ट वन इज जो रिमार्क दिया हुआ है पहले पेज पे. द रिमार्क इज अबाउट द एक्सप्लेनेशन विच ही डिडंट मेंशन देयर. सी लाइक नो जैसे सोशियो एंड कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन था जो पहले वाला, सो उसमें द थिंग्स वर सो क्लियर दैट वी डिस्कस्ड कि यू हैव टू स्टार्ट विद डेफिनेशन और एटलीस्ट मेंशन सम कोट और समथिंग. ठीक है, तो ऑन द सेम लाइंस अगर ये वाला क्वेश्चन लिखा जाए तो इसमें पॉजिटिविस्ट एंड इंटरप्रिटेटिव वाली डेफिनेशन तो मिसिंग है टोटली. तो पहले कॉन्सेप्ट समझाना इंपॉर्टेंट है ना, मतलब आप उसके डिफरेंसेस बताओ. यू आर कंपेयरिंग द टर्म्स बट स्टिल पीपल आर नॉट अवेयर अबाउट द टर्म्स, सो लाइक नो व्हाट इज द यूज ऑफ दैट. तो सबसे पहले डेफिनेशन के बाद में नेक्स्ट फेज पे जाना है. तो यू कैन सी पहले पेज पे उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि ना डेफिनेशन वहां पे मेंशन नहीं है, तो उन्होंने डेव स्टार्ट कर दिया. सेकंड पे जो गाइफिंकल वाला है, दैट पॉइंट इज आल्सो इम्पोर्टेंट टू डिस्कस. जो पॉजिटिविस्ट थे उसमें उन्होंने कहा था कि अगर कोई भी फिनोमिना होता है तो देयर इज अ स्पेसिफिक रीजन. फॉर एग्जाम्पल दखाइम का जो सुसाइड वाला था, तो उसमें ही मेंशन कि सुसाइड क्यों, तो उसका उन्होंने कैजुअल एक्सप्लेनेशन दिया है. But on the another hand, when it comes to interpretative, so they doesn't bother about the casual explanation, but just about the phenomena. कि phenomena क्या था और कैसे हुआ, that is it. बाकी they don't go and they don't dwell themselves into the deep down कि क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ. मतलब all those explanation which are required after a phenomena has been like no phenomena हो चुका है तो उसके बाद में. सो ये पॉइंट अच्छा था, इंपॉर्टेंट भी है. ग्राफिकल जो है थिंकर, यू कैन मेंशन दिस वन. और मतलब शुरू में ये डेफिनेशन के बाद बता भी सकते थे कि कौन कौन पॉजिटिव इसमें आते हैं कौन, तो उन्होंने नाम नहीं डाले, सिर्फ नहीं डेफिनेशन डाले दे दी. भाई, अपन स्टार्टिंग में डिस्कस किया था ना अपने अभी की वेबर आ जाएगा इधर इंटरप्रिटेटिव में, उधर दरखाइम आ हाँ. जाएंगे, वेब सॉरी दरखाइम हो गए, मार्क्स हो गए, उगस्त कॉम्ट हो गए, ये सभी पॉजिटिविस्ट है. हाँ. फिर इन्होंने बोला है कॉम्टे क्लेम दैट ही हैज फाइंड आउट द लॉ ऑफ इवोल्यूशन ऑफ सोसाइटी. और इसमें है मीनिंग्स एंड मोटिव्स आर डायनेमिक एंड कैन बी प्रिडिक्टेड. फिर ये वाला पॉइंट इन्होंने लिखा है दे प्रेफर साइंटिफिक मेथड्स लाइक स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज, क्वेश्चनेयर, सर्वेज. और इसमें मोर क्वालिटेटिव मेथड्स लाइक पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, फोकस ग्रुप स्टडीज आर प्रेफर्ड. हाँ, इन्होंने यहाँ पे वो वत्सेहन वाला जो मेंशन किया था वो इसी में आ जाता है.
Human behavior is guided by external world and it can be predicted. Example, social facts of Durkheim are driving force of behavior of person, that is social currents morality. Human behavior is guided by meanings and motives, according to Weber, common sense phenomenologist. Hence, human behavior is not scientifically arrestable and predictable. जो इसमें था ये जो कॉमन सेंस वाली चीज थी ये एथनो मेथोडोलॉजिस्ट ने नहीं बोला था या फिनोमिनो ने बोला था. कॉमन सेंस तो दोनों का ही था, लेकिन फिनोमिनो और जो मतलब फिनोमिनो वाले ने ये बोला था कि जो फिनोमिना होता है उसके पीछे कॉज भी होगा. ठीक है, तो वो सोशल साइंस भी अगर कुछ है, सॉरी, कॉमन सेंस भी अगर कुछ है तो उसके पीछे रीजन हो भी सकता है ना. सी, एवरी कॉमन सेंस डजंट हैव अ रीजन, बट सम कॉमन सेंस हैव अ रीजन ना. दैट इज व्हाई देयर इज अ सोशियोलॉजी. क्योंकि अगर उन्होंने कोई कॉमन सेंस की चीज ली थी तो ऑब्वियसली उससे पहले उन्हें कुछ लगा होगा कि देयर इज अ सोशल फोर्स विच इज लाइक नो persisting one social change to be happened. So that will come under phenomenology. तो यह hence both positivists and interpretativists have different objectives and methodologies, but both try to achieve higher reliability, validity, and objectivity. Some sociologists, like Alan Bryman, advocates the coordination and usage of both positivism and interpretativism to enhance the accuracy of research. Hence, both positivism and interpretativism have divergences and some convergences at times. Correct. But there is a need of some thinkers and to be aligned in a perfect manner. As the answer is good, and like no, use of the keyword is proper, the timeline and the things are arranged properly. The only thing which lacked is the definition there and mention of the some of the thinkers, and classifying them on the basis of their research, that it is a scientific research or it is just a casual, no, casual thing which doesn't state any casual and relationship, causal relationship. So that is just missing as the thing is clear much. Anything to add on Yes, now? sir. नहीं. ठीक है, तो फिर एक क्वेश्चन और देख लेते हैं ना.